ہماری پیاری زباں اردو، ہماری نغموں کی جاں اردو، ہنسی دلکش جواں اردو۔ جی ہاں دوستو، میسور کے تاریخی دسہرہ میں اردو کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہاں اردو زبان کی خوبیوں، خوبصورتی کی جھلک دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دسہرہ ایگزیبیشن میں پہلی مرتبہ اردو کا اسٹال لگایا گیا ہے اور اس اسٹال کو عوام کا زبردست ریسپانس مل رہا ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی اور انجمن ترقی اردو ہند شاخ میسور کی جانب سے لگائے گئے اردو اسٹال میں اردو کی تہذیب، ثقافت، اردو زبان کی تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے صدر محمد عبید اللہ شریف، سیکریٹری مبین منور نے میسور دسہرہ نمائش پہنچ کر اردو اسٹال کا جائزہ لیا۔ یہاں ایک قدم رکھتے ہی مانو آپ اردو کی دنیا میں آ گئے ہوں۔ اردو کے عظیم شاعروں، ادیبوں کی تصاویر، اردو کی اہم کتابیں، فلمی دنیا میں اردو کا جادو، اردو کی مصوری، شعر و شاعری، اس طرح اردو زبان کی کئی خوبیوں کو اس اسٹال میں نمایاں کیا گیا ہے۔ نہ صرف میسور کے اردو کارکنوں نے بلکہ اردو کے فنکاروں نے بھی اس اسٹال کے پیچھے کافی محنت کی ہے۔ اس اسٹال کو قائم کرنے میں ایوب خان کا کردار کافی اہم رہا ہے۔ محترم ایوب خان کرناٹک ایگزیبیشن اتھارٹی کے چیئرمین ہیں۔ آپ کی نگرانی میں میسور دسہرہ نمائش جاری ہے، جہاں کئی سو اسٹالز موجود ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ اردو اسٹال کے لیے ایوب خان نے مفت جگہ فراہم کی ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی اور انجمن ترقی اردو ہند شاخ میسور کے اشتراک سے پہلی مرتبہ دسہرہ نمائش میں اردو کا اسٹال قائم ہوا ہے۔ دوستو، ابھی 1.5 مہینے تک یہ نمائش جاری رہے گی۔ میسور دسہرہ نمائش گاہ پہنچ کر آپ اردو اسٹال کا بھی معائنہ کر سکتے ہیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ میسور میں جو ہے اردو زبان اور ادب کا نمایاں طور پر مظاہرہ ہو رہا ہے میسور کے اس دسہرہ ایگزیبیشن میں۔ میسور کے دسہرہ ایگزیبیشن میں پہلی مرتبہ جو ہے یہ کہ اردو کا اتنا بڑا اسٹال لگا ہوا ہے فیضان اردو ادب اور انجمن ترقی اردو کی جانب سے۔ اس جگہ کو جو ہے یہاں کے ایگزیبیشن اتھارٹی کے چیئرمین ایوب خان صاحب نے مفت میں یہ جگہ دی ہے۔ کافی سرمایہ لگا کہ ہمارے عبدالرحمن صاحب نے اس اسٹال کو اور لگایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عباس صاحب جو میرے بہت پرانے فنکار، بہت بڑے فنکار، بہت اعلیٰ فنکار، جنہوں نے کئی عظیم شخصیتوں کی تصاویر، حضرت سلطان شہید کی تصویر، نوشاد صاحب موسیقی کار، دلیپ صاحب، کئی عظیم شخصیتوں کی تصاویر آپ نے بنائی ہے۔ انہوں اور منور صاحب کے یہ ان کا ہنر آج یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ جب سے اسٹال لگا ہے کافی لوگ یہاں آ رہے ہیں، اس سے جو ہے دیکھ کے جو ہے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہاں آنے والے وزٹرز میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ غیر مسلمان بھی زیادہ ہیں جو اس سے کافی متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نہایت خوشی کی بات ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایگزیبیشن کے لگنے سے 1 مہینے پہلے سے ہم نے ایک کاوش شروع کی۔ ہم نے یہاں پر ہماری انجمن نے ترقی اردو کی جو شاخ ہے ان سے گزارش کی کہ یہاں پر جو ہے ایوب خان صاحب ایگزیبیشن اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، ان سے ملاقات کر کے ایک اسٹال لیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے نعمت اللہ صاحب، ادریس صاحب اور ہمارے رحمان صاحب، ان تمام کی کاوشوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھئی یہاں پر ایک بہت اچھا اسٹال مل گیا ہے۔ اور اب اسے سجانے میں جو کام ہمارے دوست عباس صاحب اور ان کے منور صاحب دونوں نے کیا ہے۔ عباس صاحب کو ہم نے 40 سال 35 سال پہلے مصور خدا داد کا ان کو لقب دیا ہے۔ مصور خدا داد ہمارے پہلا ان کو جو ہے بنگلور کے مشاعرے میں 90
91 के मुशायरे में जब दिलीप कुमार साहब आए थे, उस वक्त इन्होंने दिलीप कुमार का एक फोटो लेकर आए थे, नौशाद साहब की बना कर आए थे। वहाँ पर इनको लक़ब दिया गया कि ये मुसव्विर खुदा है, उन्हें खिताब दिया गया उन्हें। तो उस वक्त से लेकर आज तक उनकी जो उर्दू से मोहब्बत है, यहाँ बच्चों को हर दिन बच्चों को सिखा रहे हैं, कैलीग्राफी सिखा रहे हैं। इसके अलावा भी मेवा में भी हमारे नेमतुल्लाह साहब भी वहाँ पर उर्दू सिखा रहे हैं। उर्दू का बोलबाला हो रहा है। हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह ये लोग हिम्मत से काम करें। साल आइंदा इंशाअल्लाह इससे डबल स्टार लगाने की हम कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह उसके जो मंसूबे हैं वो बैठकर बनाएंगे। सबके मैसूर वालों के लिए और पूरे कर्नाटक वालों के लिए खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन। मैं तो पहले जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन अयूब खान साहब ने जो है बड़ी जिंदा दिली से जो है उन्होंने उर्दू की अपनी मोहब्बत को जो है यहाँ पर हमको यकीनन जो है ज़ाहिर करने के लिए ये मौका दिया और हमने बराबर उनसे उनके कंधे से कंधा मिलाकर जो है आप अहबाब पेंटर्स और हमारे अब्बास शरीफ साहब और मुनव्वर हुसैन की काविशों से कोशिशों से और अब्बास साहब के फर्जंद शाहिद की जानिब से सिलेक्शन हमने किया और उन्होंने इन तमाम को अलग से अलग कैटेगरी में प्रोमिनेंट नॉन मुस्लिम उर्दू राइटर्स, क्लासिकल उर्दू राइटर्स, फिर मुसलमान साइंटिस्ट, फिर उसके बाद में जो है जितने भी जो है आज तक के जो है नावल निगार, अफसाना निगार, अदीब, मुसन्निफिन हैं, उन तमाम के जो है तस्वीर लगाकर हम चाह रहे हैं कि जो है ये उर्दू के ताल्लुक़ से अवाम को जो है एक अच्छा एक उनके तासुर दिया जाए, उर्दू के ताल्लुक से उर्दू ज़बान की अहमियत को बताया जाए। ये कोशिश हमारी है। आइंदा इंशाल्लाह जो है इससे भी बढ़ चढ़ कर हम करने की कोशिश रखें। शुक्रिया। कैसा है प्रोग्राम बना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यहाँ मुझे एग्ज़िबिशन देखने के बाद मेरे में एक ख़्याल आया कि क्योंकि मैं उर्दू दान हूँ, मैं उर्दू से मेरा पहली जमात से 7th स्टैंडर्ड तक मैंने उर्दू स्कूल में ही पढ़ा था, तो मुझे उसका वो शौक़ मुझे याद आया। आने के बाद जो है ना मुझे यहाँ एग्ज़िबिशन में क्यों ना हम ये पूरे हिस्ट्री के अंदर तारीख़ में यह पहली मर्तबा मैंने इस चीज़ को अंजाम दिया हूँ। तो माशाअल्लाह यहाँ इतनी तादाद आकर यहाँ मुबारकबाद भी दे रही है और ये पहली मर्तबा का बड़े ही लुत्फ़ अंदाज में हमारी कौम से अलग दूसरी कौमों ने भी इसे बड़ा सराहा है। तो इसमें मुझे लुत्फ़ मिला। तो कोई रुकावट आपको पेश आई? रुकावट जो है उर्दू एकेडमी की तरफ से उन्होंने हम लोगों को हम कुछ कोशिश करेंगे, आपको मदद करेंगे बोले, वादा किया था। वो अभी तक कुछ नहीं किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम उनसे जाकर मिलेंगे तो वो कुछ ना कुछ हमारी मदद करेंगे। मैं इंशाअल्लाह इसके बाद आइंदा साल इससे भी अच्छा प्रोग्राम हमें अवाम को देने के लिए मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ के चेयरमैन हो और हमारे इस एग्जीबिशन के चेयरमैन जो है ना, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने इस जगह को फ्री दिया है। फ्री देने के बाद हमने ये चीज़ को बताया। क्या पहली मर्तबा ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल पहली मरतबा तारीख़ में, पहली मरतबा मैसूर की तारीख़ में। हाँ पहली मरतबा नहीं, मैसूर की तारीख़ में पहली मरतबा। और किसी ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा सक्सेस होता। बाकायदा लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और जो सबके भी खिदमत इसके अंदर शामिल हैं। और मैं एक छोटा सा एक कारीगर के अभी तिफल मकतब हूँ, फिर भी जो है लिखकर मेरे शौक़ से उर्दू में नाम लिखकर सबको दे रहा हूँ, सिर्फ दुआ के लिए। मुझे बहुत खुशी है। तो काफ़ी सारे आपके भी तहरीर करदा मजमून और तस्वीर यहाँ पर पेश की गई हैं। हाँ वो मेरे दिल में था कि मुझे मालूम है कि पहली बार जो मैंने तरक्की उर्दू की जानिब से स्टॉल लग रहा है, तो अभी इसके 15-20 दिन पहले से कोशिश किया और कम से कम 200 शोरा और अदीबों के जो है फ़ोटोस निकाल कर डिजिटल प्रिंट कर मैं उसकी अक्कासी कर मैं अपने डिस्प्ले किया हूँ यहाँ पर।
अब मेरे दिल में और शौक बढ़ गया। और फिर अब शुक्रिया, आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम पूरा नाम अब्बास शरीफ में, कमर्शियल आर्टिस्ट और कैलीग्राफर, और बच्चों को भी यहाँ मैसूर में हम सिखा रहा हूँ मैं। शुक्रिया। जी जी। मैसूर दशहरा एग्जीबिशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर जात का, हर कौम का, हर तबके का आदमी यहाँ पर आता है। यहाँ का फुटफॉल जो है 3 महीने के अंदर तकरीबन 20 लाख के ऊपर जाता है। हर दिन मेले की तरह आदमी लोग आते हैं, जाते हैं। मैंने सोचा कि उर्दू की फ़रोग़ के लिए, उर्दू ज़ुबान दिखाने के लिए सिर्फ हम कौम को नहीं, औरों को भी उर्दू क्या है इसको बताने के लिए इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकती। तो इसको सोचते हुए मैंने एक लेटर इस रियासत के वज़ीर आले जनाब ज़मीर अहमद साहब को दिया था। उसके बाद उन्होंने एक माइनॉरिटी स्टॉल भी डाला है और उर्दू स्टॉल शुरू करने का वादा कर कर उर्दू अकेडमी वालों को हिदायत दी थी कि हाँ एक उर्दू स्टॉल भी स्टार्ट करें। तो उसके साथ साथ यहाँ पर उर्दू स्टॉल डालने के लिए मुफ्त में फ्री जगह दिया है। यहाँ पे मैसूर के बहुत सारे तंजीम वालों ने जमकर मिलकर एक उर्दू स्टॉल बनाया है। माशाअल्लाह ये उर्दू स्टॉल तकरीबन 10-15 दिन पहले इनाग्रेट हुआ। इसका इनाग्रेशन अली जनाब तनवीर साहब, माए और तमाम कौम मिल्लत के लोग जमकर किए थे। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि इस स्टॉल को दिन भर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, उर्दू को समझ रहे हैं और उर्दू ज़ुबान में क्या मिठास है, क्या तहजीब है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने इसको मेहनत कर कर यहाँ पर उर्दू स्टॉल लगाया गया है। मेरी फिक्र यही थी कि उर्दू ज़ुबान को आगे बढ़े, उर्दू ज़ुबान हर आदमी के ज़बान पर रहो और ये ज़बान सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान नहीं, हर कौम और कौम की ज़ुबान बनकर रहे।